تاریخ تھی 4 نومبر 2017 اور جگہ تھی سعودی عربیہ کے ریاض شہر کے اندر موجود رتز کارلٹن ہوٹل۔ یہ دنیا کے ان سب سے عالیشان اور مہنگے ہوٹل میں سے ایک ہے کہ جہاں پر زیادہ تر لوگ تو جا بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ صرف ایک رات گزارنے کا خرچہ بھی یہاں پر ہزاروں ڈالر میں ہے۔ مگر آج کی رات اس ہوٹل کے اندر کچھ ایسا ہو رہا تھا کہ جس کو اگلے ایک لمبے وقت تک پوری دنیا یاد رکھنے والی تھی، کیونکہ اب یہی عالیشان اور مہنگا ہوٹل پوری طریقے سے جیل میں بدل چکا تھا، اور وہ بھی عام کمزور یا غریب لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ سعودی عربیہ کے سب سے طاقتور لوگوں کے لیے۔ ان میں سعودی عربیہ کے بڑے بڑے بزنس مین، رائل فیملی کے بڑے بڑے شہزادے اور اس کے علاوہ حکومت کے چھوٹے بڑے پدوں پر بیٹھنے والے منسٹرز شامل تھے۔ مطلب وہ لوگ کہ جو ابھی کچھ لمحہ پہلے تک پورے سعودی عربیہ کو چلا رہے تھے، اور جن کے ایک اشارے پر سعودی عربیہ کے عام اور خاص لوگوں کے فیصلے ہو رہے تھے۔ مگر اس رات چند لمحوں کے اندر ہی باہر سے عالیشان دکھنے والے اس ہوٹل کے اندر یہ سارے کے سارے لوگ قیدی بن چکے تھے۔ یہ سارے لوگ اس ہوٹل کی زمین پر چادر اور بستر بچھا کر سونے کی کوششیں کر رہے تھے، مگر سو نہیں پا رہے تھے، کیونکہ یہ نہ صرف پریشان تھے بلکہ کنفیوز بھی تھے کہ آخر اچانک سے ہوا کیا ہے۔ کیا سعودی عربیہ کے اندر بغاوت ہو چکی ہے؟ محل کے اندر کوئی سازش وغیرہ چل رہی ہے، یا پھر معاملہ کچھ اور ہی ہے؟ تو ساتھیوں، واقعی کھیل تو کچھ اور ہی تھا، بلکہ یہ کھیل ان تمام سازشوں اور ان تمام چیزوں سے کہیں زیادہ بڑا تھا، اور اس کھیل کو سعودی عربیہ کے اندر جو انسان کھیل رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ بہت کم عمر کا نوجوان تھا، کہ جس کو دنیا آج MBS مطلب کہ محمد بن سلمان کے نام سے جانتی ہے۔ تو اب محمد بن سلمان اور MBS کی طرف سے کھیلے جا رہے اس بڑے کھیل کی اگر پوری کہانی کو بھی ہم کو سمجھنا ہے تو ہم کو پہلے 2014 اور 15 کے آس پاس میں چلنا پڑے گا، کہ جب سعودی عربیہ کے اندر قائم آل سعود کی جو حکومت ہے وہ اپنے وجود کو لے کر ایک بڑا خطرہ محسوس کر رہی تھی۔ صرف سعودی عربیہ ہی نہیں بلکہ آس پاس میں باقی بھی جتنی چھوٹی بڑی عرب ریاستیں ہیں ان کی حکومتیں بھی بالکل یہی خطرہ محسوس کر رہی تھیں، اور یہ خطرہ کچھ اور نہیں بلکہ اس دور میں پورے مڈل ایسٹ کے اندر آنے والی عرب اسپرنگ تھی، کہ جس کی وجہ سے آلریڈی کئی علاقوں میں حکومتیں گر چکی تھیں، بڑے بڑے ڈکٹیٹرز کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ تو اب سعودی عربیہ سمیت ان تمام عرب دیشوں کو بھی یہی خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس طرح کا کوئی بھی پبلک موومنٹ ہمارے یہاں شروع نہ ہو جائے۔ تو ساتھیوں، اب ایسے ہی مشکل بھرے حالات میں سن 2015 میں سعودی عربیہ کی گدی پر ایک نیا اور کافی عمر دراز حکمران بیٹھا۔ اس نئے حکمران اور بادشاہ کا نام تھا سلمان بن عبدالعزیز۔ سلمان بن عبدالعزیز کے بارے میں ایک عجیب اور پرانے حکمرانوں سے جو الگ ہٹ کر بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ گدی پر تو بیٹھے ہوئے تھے، مگر حکومت کی جو اصلی پاور تھی وہ ان کے پاس نہیں بلکہ کسی اور کے پاس تھی، اور یہ جو انسان تھا کہ جس کے ہاتھوں میں پردے کے پیچھے سعودی عربیہ کی اصلی طاقت تھی، یہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کا خود کا ایک نوجوان بیٹا تھا جس کا نام تھا محمد بن سلمان۔ آپ میں سے شاید بہت سارے لوگوں کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ 2015 میں پردے کے پیچھے سے جو MBS پورے سعودی عربیہ کو کنٹرول کر رہے تھے ان کو کچھ وقت پہلے تک کوئی جانتا تک نہیں تھا۔ وجہ بالکل سمپل تھی، کیونکہ ان کے حکمران بننے کے یا پھر کراؤن پرنس بننے کے دور دور تک کوئی چانس ہی نہیں تھے، بلکہ یہ تو اس لائن کے اندر بھی دور دور تک موجود نہیں تھے کہ جس لائن میں لگے ہوئے لوگوں کو ہی اگلا حکمران یا کراؤن پرنس بنایا جاتا ہے۔ تو اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ دور دور تک لائن میں نہیں تھے تو اچانک سے پھر سعودی عربیہ کے سب سے طاقتور انسان کیسے بن گئے؟ تو اس کا جواب جاننے کے لیے ہم کو پہلے اس پروسیس کو سمجھنا ہوگا کہ جس کو سعودی عربیہ کا اگلا حکمران چننے کے لیے فالو کیا جاتا ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دنیا کی باقی حکومتوں اور ریاستوں سے الٹ سعودی عربیہ میں حکومت کی جو گدی ہوتی ہے وہ باپ سے بیٹے کی بجائے بھائی سے بھائی میں ٹرانسفر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر موجودہ بادشاہ شاہ سلمان پر ہی نظر ڈال لی جائے تو ان کو بھی یہ حکومت کی گدی دراصل ان کے ایک سوتیلے بھائی عبداللہ بن عبدالعزیز کی موت کے بعد ملی ہے۔ تو اسی لیے جیسے ہی سن 2015 میں شاہ سلمان گدی پر بیٹھے تو لوگوں کو یہی امید تھی کہ پرانی روایت کے مطابق یہ بھی اگلی جنریشن کے کسی تجربے کار اور سینئر انسان کو ہی اپنا جانشین چنیں گے، مطلب اپنا کراؤن پرنس بنائیں گے۔ انہوں نے شروعات میں بالکل کیا بھی ایسا ہی، مطلب کہ اپنے ایک سوتیلے بھائی مکرم بن عبدالعزیز کو اپنا کراؤن پرنس چنا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگلے حکمران وہ بنیں گے، جبکہ اپنے ایک طاقتور اور کافی مشہور بھتیجے محمد
मोहम्मद बिन नाइफ को अपना नायब जानशीन चुना, जिसका मतलब अब ये था कि मुकरिम बिन अब्दुल अजीज के बाद सऊदी अरबिया की गद्दी पर बैठने का अगला नंबर मोहम्मद बिन नाइफ का था। अब ये जो मोहम्मद बिन नाइफ थे ये सऊदी अरबिया के अंदर काफी प्रभावशाली हुआ करते थे। इंटीरियर मिनिस्टर थे, सऊदी अरबिया के तमाम सिक्योरिटी के मामलात भी इन्हीं के कंट्रोल में रहा करते थे। और तो और ये अमेरिका के भी काफी करीबी माने जाते थे, तो मतलब सब कुछ सेट था। जबकि दूसरी तरफ इस दौर तक मोहम्मद बिन सलमान तो दूर दूर तक तस्वीर में ही नहीं थे, बल्कि इस दौर तक भी सऊदी अरबिया की जो रॉयल फैमिली थी उसमें उनको कोई खास शहजादा तक नहीं समझा जाता था। इनके जितने भी ये असरदार, मशहूर और ताकतवर कजिन्स थे, उन्हीं के बीच में मोहम्मद बिन सलमान कहीं गुम रहा करते थे, दब कर रहा करते थे। मगर हाँ, MBS से जुड़ी हुई एक चीज जरूर ऐसी थी कि जिस पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया था, और यही वो चीज थी कि जो अब सऊदी अरबिया के अंदर सब कुछ बदलने जा रही थी। वो चीज ये थी कि MBS अपने फादर सलमान बिन अब्दुल अजीज के हद से ज्यादा चहीते और दुलारे हुआ करते थे। बात जब अपने लाडले बेटे MBS की आ जाती थी तो फिर सलमान बिन अब्दुल अजीज किसी की भी नहीं सुना करते थे और सब कुछ कर जाने के लिए तैयार रहा करते थे। और यही चीज फिर MBS के खेल में गेम चेंजर साबित हुई। वैसे यहाँ पर ये चीज भी मेंशन करना जरूरी है कि MBS के अंदर कुछ खूबियां भी थीं कि जो उनको उस दौर में भी बाकी शहजादों से काफी अलग बनाती थीं। मिसाल के तौर पर उनके बारे में लिखा गया कि वो काफ़ी एनर्जेटिक थे, काम करने का बहुत शौक था, 17 से 18 घंटे तक लगातार काम कर लिया करते थे। इसके अलावा MBS को प्रेजेंटेशन, डेटा, चार्ट, इस तरह की चीज़ें भी बहुत पसंद थीं। ये शहजादा काफ़ी तेज़ और एनर्जेटिक होने के साथ साथ काफ़ी बेसब्रा भी था। मतलब जो भी करना है फ़ौरन करना है, जो भी करवाना है वो फ़ौरन कंप्लीट चाहिए। और MBS का इतना ज़्यादा बेसब्रा होना ही आने वाले दिनों में न सिर्फ MBS की सबसे बड़ी ताकत बना, बल्कि फिर वक्त के साथ सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गया। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि दुनिया की सबसे अमीर और ताकतवर फैमिली में परवरिश पाने वाला ये जो शहजादा था, ये इतना ज्यादा जल्दबाज और बेसब्रा था क्यों? तो दोस्तों, इसके लिए हमको MBS की जिंदगी के एक और पहलू पर नजर डालनी पड़ेगी। बेन हेबर्ड ने अपनी किताब द राइज टू पावर ऑफ मोहम्मद बिन सलमान में लिखा है कि MBS की जवानी का एक बड़ा हिस्सा वीडियो गेम खेलते हुए गुजरा है, खास तौर से जो स्ट्रेटेजी वाले मतलब रणनीति बनाने वाले गेम होते हैं उनको खेलते हुए, जिसमें कॉल ऑफ ड्यूटी, एज ऑफ एम्पायर्स और फाइनल फैंटेसी जैसे मशहूर गेम शामिल हैं। और ये चीज MBS की पर्सनैलिटी में बिल्कुल शुरू से ही क्लियरली नजर भी आती है। मतलब MBS ने सऊदी अरबिया को और बाकी दुनिया को शुरू से ही एक वीडियो गेम की तरह देखना शुरू किया, जहां पर रिस्क भी लेना है, रिसोर्सेज को भी कंट्रोल करना है और वक्त आने पर अपने मुखालिफिन को भी पूरी ताकत के साथ दबाना है। अब आप आसानी के साथ इस बात का अंदाजा लगा ही सकते हैं कि उस दौर में सब कुछ इतनी तेजी के साथ क्यों बदला था, क्योंकि एक तेज, जल्दबाज, बेसब्रे और रिस्क लेने वाले शहजादे को ये महसूस हो गया था कि अगर उसने वो सब कुछ बिल्कुल अभी नहीं किया कि जो उसके इरादे हैं, तो फिर वो अपने उन इरादों को कभी भी हासिल नहीं कर पाएगा। क्योंकि जाहिर है, जैसा कि हम बता चुके हैं कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का तो दूर दूर तक हुक्मरान बनने की लिस्ट में नाम ही मौजूद नहीं था। बस फिर क्या था, खेल शुरू हुआ और इस खेल में सबसे पहला और बड़ा किरदार अदा किया MBS के फादर शाह सलमान ने, कि जिनको अपने MBS के ऊपर अंधा भरोसा था। वो किंग सलमान ही थे कि जिन्होंने अब अपनी सारी रिवायतों, सारे उसूलों को तोड़ते हुए अपने चहीते बेटे MBS के लिए रास्ता साफ करना शुरू कर दिया। और इस मिशन में उन्होंने जो सबसे पहला ही कदम उठाया, उसी ने ही सऊदी अरबिया को हैरान करके रख दिया। किंग सलमान ने किया ये कि 2015 में बादशाह बनते ही MBS को सऊदी अरबिया का डिफेंस मिनिस्टर बना दिया। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 29 साल का एक लड़का कि जिसको ना तो तजर्बा था और ना ही वो कभी पब्लिक में ज्यादा नजर आया था, वो अचानक से उस सऊदी अरबिया जैसे एक बड़े देश का डिफेंस मिनिस्टर ही बना दिया गया कि जो मुस्लिम दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर देशों में गिना जाता है। किंग सलमान के इस फैसले से बहुत सारे लोग हैरान तो थे, मगर उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये तो बस अभी शुरुआत है, क्योंकि इसके कुछ वक्त के बाद ही अब MBS को काउंसिल फॉर इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट अफेयर्स का भी सरबरा बना दिया गया था, जिसका सीधा सा मतलब ये था कि देश की जो इकोनॉमी थी, जो ऑयल इंडस्ट्री थी या फिर बाकी भी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, वो सारी की सारी चीजें इस कम उम्र लड़के के हाथों में आ चुकी थी। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, वैसे वैसे अंदर ही अंदर MBS को लेकर माहौल भी तैयार किया जा रहा था। और फिर आखिरकार अप्रैल 2015 का वो वक्त भी आ गया कि जब किंग सलमान ने बड़ा धमाका किया।
किंग सलमान के जिनको अभी बादशाह बने हुए सिर्फ 3 ही महीने हुए थे, उन्होंने एक शाही फरमान के जरिए से मुकरिब बिन अब्दुल अजीज को उनकी पोजीशन से हटा दिया। जी हाँ, वही कि जिनके बारे में हमने शुरू में बताया था कि वो क्राउन प्रिंस थे, मतलब उनका बादशाह बनने का अगला नंबर था। उनको हटाकर उनकी गद्दी पर उन मोहम्मद बिन नाइफ को बैठा दिया गया कि जो उनसे निचली पोजीशन पर थे, मतलब जो नाइफ वलीअहद थे। मगर आप लोगों के लिए जो जानने वाली चीज है वो ये है कि मोहम्मद बिन नाइफ की ये जो कुर्सी खाली हुई थी, जानते हैं कि इस पर किसे बैठाया गया? तो इस पर बैठाया गया MBS को। जी हाँ, एक ही बार में छलांग मारकर मोहम्मद बिन सलमान नंबर 2 की पोजीशन पर आ चुके थे, बावजूद इसके कि इससे पहले वो दूर दूर तक इस लिस्ट में कहीं नजर ही नहीं आते थे। साथियों, इसके बाद अब MBS ने सऊदी अरबिया की हुकूमत का जो पूरा सिस्टम था उसके ऊपर अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। सबसे पहले आर्मी को अपने कंट्रोल में करना शुरू किया, इकोनॉमी पर अपनी पकड़ बनाई, इसके अलावा मीडिया को भी अपने हक में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। खास तौर से MBS की अब खूब जबरदस्त तरीके से ब्रांडिंग की गई, मतलब MBS की एक नई पहचान बनाई गई। एक ऐसा शहजादा कि जो कम उम्र का है, खुले मिजाज का है, खुले दिमाग का है, जो सिर्फ काम करना चाहता है, सऊदी अरबिया की जो सोसाइटी है उसके अंदर रिफॉर्म्स लाना चाहता है, और जो पुराना रिवायती बेकार सिस्टम है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहता है। MBS को लेकर सऊदी अरबिया में ये सब कुछ अगले कई महीनों तक चलता रहा, बल्कि ये कहिए कि अगले पूरे 2 साल तक चलता रहा। और फिर जून 2017 का वक्त आ गया कि जब फाइनली इस मामले में दूसरा धमाका हुआ, और वो बड़ा धमाका ये था कि अब किंग सलमान ने उन मोहम्मद बिन नाइफ को भी अपनी पोजीशन से हटा दिया कि जिनको दूसरी पोजीशन से पहली पोजीशन पर बैठाया गया था, ताकि दूसरे नंबर की पोजीशन के जरिए से MBS को सिस्टम में एंट्री दिलवाई जा सके। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन नाइफ के जो न सिर्फ हद से ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे बल्कि अमेरिका के काफी करीबी भी समझे जाते थे, उनको किसी बहाने से महल में बुलाया गया था, वहां पर नजरबंद कर दिया गया था और फिर उनके ऊपर प्रेशर डालकर जबरदस्ती उनसे इस्तीफा लिया गया था। उनके इस्तीफे के बाद अब सऊदी अरबिया को अपना नया क्राउन प्रिंस मिल चुका था, और जानते हैं कि इस क्राउन प्रिंस का नाम क्या था? इसका नाम था मोहम्मद बिन सलमान। सिर्फ और सिर्फ 31 साल का एक नौजवान अब सऊदी अरबिया जैसे एक बड़े देश का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका था। सऊदी अरबिया में 2015 से लेकर 2017 के बीच में ये जो कुछ भी होता रहा था, ये जो कुछ भी खेल खेला गया था, ये भले ही खामोशी सही मगर एक बड़ी बगावत थी, और ये बगावत अब पूरी तरीके से कामयाब हो चुकी थी। मोहम्मद बिन सलमान ने कुछ बड़े राइवल्स को ठिकाने भी लगा दिया था और गद्दी भी हासिल कर ली थी, और जो बचे हुए भी राइवल्स थे, मतलब हुकूमत या फिर खानदान में ऐसे लोग थे कि जिनसे मुखालिफत हो सकती थी, उनकी बारी अब आ चुकी थी। गद्दी संभालने के बाद अगले कुछ वक्त के अंदर MBS ने लगातार इस तरह के बेशुमार कदम उठाए कि जिनके जरिए से सिस्टम पर अपनी पकड़ को मजबूत किया जा सके, और जितनी भी ऐसी आवाजें हैं कि जो फ्यूचर में मुखालिफ हो सकती हैं, खतरा बन सकती हैं, उनको भी खत्म किया जाए। वीडियो के बिल्कुल शुरू में रियाज के एक आलीशान होटल की जिस रात का हमने जिक्र किया था, वो भी दरअसल MBS की इसी मुहिम का एक हिस्सा थी कि जब नवंबर 2017 की एक रात इस आलीशान होटल के अंदर सऊदी अरबिया के बेशुमार ऐसे शहजादों को कैद कर दिया गया कि जो न सिर्फ काफी अमीर थे बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में गिने जाते थे। शुरू में तो सरकारी तौर पर यही बताया गया कि ये करप्शन के खिलाफ उठाया गया बस एक कदम है, मगर सभी को पता था कि मामला कुछ और ही चल रहा है। बाद में पता चला कि इन लोगों को कई हफ्तों तक इस होटल के अंदर कैद रखा गया था। इन लोगों के ऊपर प्रेशर डाला गया या इनसे ये डिमांड की गई कि ये अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सरकारी खजाने में जमा करें, और इसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान की वफादारी का वादा करें। सऊदी अरबिया के अमीर और ताकतवर शहजादों की ये सिर्फ गिरफ्तारियां ही नहीं थी, बल्कि ये वार्निंग थी, एक मैसेज था कि आज से पूरे सऊदी अरबिया का सिर्फ एक ही बॉस है, एक ही हुक्मरान है, और उसका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। तो साथियों, ये थी मोहम्मद बिन सलमान के गद्दी तक पहुंचने की पूरी कहानी। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।